عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بی جے پی کے بنڈی سنجے نے کہا کہ گولکنڈہ قلعے پر زعفرانی پرچم لہرائیں گے، تو وہیں پر انڈا اور گوشت پر پابندی کو لے کر احتجاج کر رہے ایودھیا کے مہنت پرمہنس کو اس وقت پھر حراست میں لے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ٹریکٹر ریلی اس وقت زوروں پر آ رہی ہے۔ بی ای ایل میں انجینئرز کے لیے کچھ جاب آفرز آئے ہیں، میں اس کی تفصیل رکھتا ہوں، ہمارے انجینئر طلبہ شاید اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور مدھیہ پردیش اور یو پی سے بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ ایک طرف پولیس پر کیا الزام لگا ہے اور دوسری جانب جو ہے کس طرح 13 سالہ لڑکی کے ساتھ حیوانیت ہوئی ہے مدھیہ پردیش میں بتاؤں گا۔ اور توہین مذہب کا الزام لگا کر جس نے پروفیسر کو قتل کیا تھا پاکستان میں، اس طالب علم کو سزائے موت کا فیصلہ دیے جانے کی خبریں آ رہی ہے۔ تو جالور میں بس میں لگی آگ کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کنداپور میں کرناٹک کے ایک علاقہ ہے، وہاں پر کس طرح نقلی یعنی جعلی جرنلسٹ کو یعنی رپورٹروں کو گھونسے پڑے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سعودی عرب اور دیگر کچھ اہم ترین خبریں ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے میں آپ کو لے چلوں تلنگانہ بی جے پی کے سربراہ بنڈی سنجے نے کہا ہے کہ 2023 کے عام انتخابات میں بی جے پی اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے سخت محنت کرے گی۔ پارٹی ملک اور سچائی کے لیے آگے بڑھے گی۔ پارٹی کے عاملہ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے کہا کہ پارٹی گولکنڈہ قلعے پر زعفرانی پرچم لہرائے گی۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں اور حیدرآباد میں گولکنڈہ قلعہ کس کے لیے پہچانا جاتا ہے، یہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ اب چار مینار کے بعد یہ بی جے پی کے لیڈران جو ہے گولکنڈہ قلعے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جو تمام مذاہب کے لوگ دنیا کے کونے کونے سے اس قلعے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اب یہاں بھی زعفرانی پرچم لہرا کر کے یہ الگ ہی انداز میں جو ہے ایک میسیج لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنڈی سنجے نے بڑے ہی تیور دکھاتے ہوئے کہا کہ جو ہے وہ ضرور برضرور گولکنڈہ قلعے میں زعفرانی پرچم لہرائے گی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ چار مینار کے آس پاس میں کوئی بھی مندر نہیں تھی، لیکن کس طرح اس جگہ کو متنازع بنا دیا گیا اور کس طرح یہ معاملہ کورٹ میں پہنچا اور وہاں پر جو ہے امن کے نام پر کس طرح مندر تعمیر کر دیے گئے۔ اسی طرح کا معاملہ گولکنڈہ قلعے میں بھی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے بی جے پی کی جانب سے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا کچھ تیاریاں چل رہی ہیں بی جے پی میں۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں ایودھیا، اور وہاں پر مہنت پرمہنس کو ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیے جانے کی یعنی نظر بند کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایودھیا میں تپسوی چھاونی کے مہنت پرمہنس داس یہ ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں الگ الگ معاملے کو لے کر کے۔ ضلع انتظامیہ نے ان کو پھر سے نظر بند کر دیا ہے۔ پرمہنس داس اپنی رہائش پر یہ بھوک ہڑتال شروع کر دیا تھا اور مہوبرا بازار میں اپنے مطالبات کو لے کر دھرنے پر بیٹھنے جا رہے تھے کہ اسی وقت انتظامیہ نے انہیں گھر میں ہی بند کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پرمہنس داس ایودھیا میں انڈا، گوشت اور شراب کے فروخت پر مکمل پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی گورکشا کے لیے علیحدہ وزارت تشکیل دینے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ مہنت ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے خبر رکھی تھی کہ کس طرح سے جو ہے الگ الگ مطالبات کو لے کر کے زبردستی جو ہے وہ لوگوں میں اڑچنیں پیدا کرنے اور تکالیف پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایودھیا میں کئی مرتبہ ان کو حراست میں بھی لیا گیا اور اب جو ہے ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، آئیے میں اگلی خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے یوم جمہوریہ کے موقع پر راجدھانی دہلی میں کسانوں کے ٹریکٹر مارچ کے لیے لدھیانے میں تیاریاں چل رہی ہیں۔ ٹریکٹر مارچ میں شرکت کرنے جا رہے ایک شخص نے بتایا کہ 24 جنوری سے پہلے ہم 1 لاکھ ٹریکٹر پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے، ہم سب متحد ہو کر کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، کسانوں کا آندولن سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے اور شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 26 جنوری کو
किस तरह का मंज़र जो है वो पेश होने वाला है वो दिल्ली के बॉर्डर्स में या फिर दिल्ली शहर में। नाज़रीन गिरामी, अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर हैं तो फिर आपके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में यानी कि BEL बिल जिसको कहा जाता है, उस कंपनी में आपके लिए कुछ जॉब्स ऑफर किए जा रहे हैं। जी हाँ, कैंडिडेट जो उम्मीदवार होगा उसको जून 2018 में इंजीनियरिंग से पास करना लाजमी होगा और 60% उसकी जो है मार्कशीट में फ़ीसदी कामयाबी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटका से ताल्लुक़ रखने वाले ही इंजीनियर्स जो है इसमें और इस जॉब में जो है हिस्सा ले सकते हैं। लिहाजा आप हजरात अगर इंजीनियर हैं और ग्रेजुएट हैं तो ज़रूर बस ज़रूर जो है अपनी किस्मत आजमाएं यहाँ पर। और बताया जा रहा है कि जो है डिप्टी मैनेजर HR CLD के नाम पर जो है आपको मेल करना होगा या फिर उनको तफसीलात भेजनी होंगी। सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जालाहल्ली पोस्ट, बेंगलुरु 560013 में अगर आप लोग जाकर के वहाँ पर, इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी है और अगर उस फॉर्मेट को आप जो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो है वहाँ जाकर के जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशंस को और जो है यहाँ पर आप पोस्ट भी कर सकते हैं। आपको जो बेल की BEL इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाएंगे तो सारी इसकी तफसीलात मिल जाएंगी और 23 जनवरी 2021 से पहले जो है आपको जो है यहाँ पर अपना सारी तफसीलात भेजनी होगी। और ये जो एप्लीकेशंस हैं जो कर्नाटका से ताल्लुक़ रखने वाले, बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले अगर हैं आप तो जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL अगर आप गूगल में जाकर के सर्च करेंगे तो वहाँ पर वेबसाइट सामने आ जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं और 2018 जून के बाद पास करदा हैं तो आपको ज़रूर बर ज़रूर यहाँ पर किस्मत आजमाई करना चाहिए। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको आगे ले चलूँ और मध्य प्रदेश में एक अफसोसनाक वारदात आज पेश आई है। जी हाँ, 13 साला लड़की के साथ 24 घंटे के अंदर 2 मरतबा ट्रक ड्राइवर्स और इस तरह के अफराद मिलकर के, जिसमें बताया जा रहा है कि जो है 9 अफराद शामिल थे, लगातार एक 13 साल लड़की के साथ हैवानियत अपनाई है। और बिलाखिर डर के मारे पहली मरतबा जब इस लड़की के साथ हैवानियत हुई तो उसने बताया नहीं, लेकिन दूसरी मरतबा मज़ीद 5 ट्रक ड्राइवर्स और दीगर लोग मिलकर के और एक ढाबे का मालिक भी मिलकर के इस लड़की के साथ जो है ज़्यादती की है। और बिलाखिर उस खातून ने, उस लड़की ने जो है पुलिस के सामने सारी तफसीलात बयान की है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है अभी तक इन लोगों पर जो है मध्य प्रदेश में जिस तरह की ख़वातीन को लेकर के जराइम सामने आ रहे हैं उस सिलसिले में यहाँ की पुलिस संजीदा तो नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि जो लोग गुनाह ही नहीं करते, यानी कि कॉमेडियन फारूकी को जिस अंदाज में गिरफ़्तार कर लिया गया और पुलिस का ख़ुद बयान है कि जो है उसके सिलसिले में कोई तफसीलात या कोई ऐसी वजाहत या कोई ऐसी वीडियो सामने नहीं है या कोई ऐसी सबूत व शवाहिद नहीं है कि उसने जो है हिंदू देवी देवताओं को जो है कुछ बुरा भला कहा हो, लेकिन इसके बावजूद ज़मानत नहीं मिल रही है और पुलिस उसको गिरफ़्तार करने में इस कदर उतावली हुई कि जो है रात के 12 बजे भी ड्यूटी अंजाम देने पर जो है पूरी तरह से जो है मुतहर्रिक नज़र आई। और यहाँ पर जो है लगातार ख़वातीन को लेकर के रेप के केस लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह संजीदा नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब ख़बर आ रही है कि कुछ लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया इस सिलसिले में। ऐसा एक मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर से भी सामने आया। यहाँ पर तो पुलिस एहलकार के खातून का 2 बार रेप करने का मामला सामने आया और पुलिस ने बताया कि खातून का इल्ज़ाम है कि मुलजिम सब इंस्पेक्टर ने उसका वीडियो भी बना कर के उसको जो है ब्लैकमेल कर रहा था। खातून का इल्ज़ाम है कि 8 जनवरी को जब वो शाहजहाँपुर से लौट रही थी तब जलालाबाद पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर उसे एक सुनसान जगह ले गया और दूसरी बार उसका रेप किया। खातून का कहना है कि वो अपने शौहर के खिलाफ जहेज़ को लेकर हरासानी के मामले के दौरान मुलजिम सब इंस्पेक्टर के राब्ते में आई थी। उसका इल्ज़ाम है कि उन्होंने सबसे पहले 2 सितंबर 2020 को मुलजिम पुलिस एहलकार के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। उस वक्त मुलजिम पुलिस एहलकार कलान पुलिस स्टेशन में तैनात था और उसका रेप किया। फिर उसके बाद दोबारा उसकी वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल करके रेप करता रहा। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं यूपी में और मध्य प्रदेश में। आइए नाज़रीन, मैं आपको आगे ले चलूँ। जिस प्रोफेसर को तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर जिस तालिब इल्म ने कत्ल किया था पाकिस्तान के एक इलाके में, वहाँ पर अब ख़बर आ रही है कि उस तालिब इल्म को सज़ाए मौत दी गई है। पंजाब की जनूबी ज़िला बहावलपुर में
तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर कॉलेज प्रोफेसर को कत्ल करने वाले तालिब इल्म को 2 बार सजाए मौत सुना दी गई। बहावलपुर में गवर्नमेंट सादिक एजर्टन एसई कॉलेज के शोबे अंग्रेज़ी के प्रोफेसर खालिद हमीद को उनके एक शागिर्द खतीब हुसैन ने मार्च 2019 में तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया था। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद ये मुकदमा बहावलपुर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में ज़ेर समाअत था, जहां जज मेहर नासिर हुसैन ने केस की कार्रवाई मुकम्मल होने पर हफ्ता 16 जनवरी को केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने खतीब हुसैन को जुर्म साबित होने पर दफ़ा 302 के तहत सज़ाए मौत और 5 लाख रुपये जुर्माना, जबकि दफ़ा 7 ATA के तहत भी सज़ाए मौत और 2 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। ये सज़ाएँ मजमूई तौर पर 2 बार सज़ाए मौत और 7 लाख रुपये जुर्माना बनता है। फाजिल अदालत ने खतीब हुसैन को कत्ल पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर उसे गिरफ़्तार किए गए साथी मुलजिम ज़फ़र हुसैन को मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत मजमूई तौर पर 14 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई थी। नाज़रीन, पूरा मामला 2019 में आप लोगों के सामने आया था। एक मरतबा फिर इस तालिब इल्म को सज़ाए मौत देने के बाद ये मामला इस वक्त पाकिस्तान में सुर्खियों में छाया हुआ है। नाजरीन, आज राजस्थान के जालोर से बहुत ही अफसोसनाक खबर आई और वो ये है कि गुज़श्ता रात बस में आग लग जाने से दर्दनाक हादसे में 6 मुसाफिरों की मौत हो गई है। मुसाफिरों से भरी बस बिजली की तार की जद में आ गई थी, जिससे देखते ही देखते बस में आग लग गई। बस में सवार मुसाफिर जब तक कुछ समझ पाते सभी आग की लपेटों में घिर गए थे। हादसे में जहां 6 मुसाफिरों की मौत हो गई, वहीं 7 दीगर मुसाफिरीन संगीन तौर पर ज़ख्मी हो चुके हैं। ये वाक़या जालोर के महेशपुर इलाके में पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस और इंतज़ामिया की टीम जाए हादसे पर पहुंची, जिसके बाद ज़ख्मियों को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, बसों में आग लगना, इस तरह के हादसे की खबरें जब आती हैं तो वाकई में अचंभे में डालनी होती है कि किस तरह पल भर में बसों को जो है बस आग की लपेट में आ जाते हैं। और बिलखुसूस रात के मौसम में जब इस तरह की वारदात पेश आती है तो फिर जो है लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। और आग, चूँकि इसी तरह आग जिन चीज़ों को जल्द से धर लेती है, फैल जाती है, उस तरह की चीज़ें चूँकि बसों में होती है तो पल भर में पूरी बस आग की जद में आने की वजह से बहुत बड़ा सानिया पेश आता है। और ऐसे मामलात लगातार हम लोगों के सामने आते रहे हैं, वो चाहे आंध्रा में हो या कर्नाटक में हो या दीगर रियासतों से। ऐसे हालात में जो है पेश के इक़दामात करते हुए इस तरह के हंगामी हालात में निपटने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, बसों को और किस तरह उसको तरतीब देना चाहिए, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, जाली रिपोर्टर्स, झूठे रिपोर्टर्स, फेक रिपोर्टर्स मैदान में जाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और कभी कभी जो है पकड़े जाते हैं तो बुरी तरह से मारे जाते हैं। ऐसा एक मामला कर्नाटक के उडुपी ज़िले से सामने आ रहा है। यहाँ पर एक कुंदापुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक रिज़ॉर्ट के मालिक को कुछ फेक और जाली रिपोर्टर्स लगातार ब्लैकमेल करके उससे पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब रिज़ॉर्ट मालिक को ये पता चला कि ये फेक रिपोर्टर्स हैं, जाली रिपोर्टर्स हैं और उसको परेशान करके सिर्फ पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, तो उडुपी के एक इलाके में पैसा देने के बहाने उन रिपोर्टर्स को बुला लिया। लोगों को जमा करके उन रिपोर्टर्स के पहुंचने के बाद खूब पिटाई की है और उसके बाद जो है पुलिस थाने में, मलपे पुलिस थाने में उन जाली और फेक रिपोर्टर्स को हवाले करते हुए बताया कि वो किस तरह उसको जो है ब्लैकमेल करके पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे थे। तो नाज़रीन, इस तरह के अक्सर मामले सामने आते हैं कि आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग फेक और जाली रिपोर्टर बन कर के मैदानी सतह पर जो है बड़े बड़े कारोबारियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में संभलने की, और जब कोई इस तरह के कोई कॉल्स आते हैं किसी भी बड़े इदारे के नाम से, सबसे पहले छानबीन करने की बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब की मिलिट्री फैक्ट्री एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में टेक्निकी तरक्की के लिए इंजीनियर्स के तौर पर खिदमात की शुरुआत करते हुए 100 से ज़ायद ख़वातीन ने सिनफ़ी रुकावटों को तोड़ दिया है। यानी अब सऊदी अरब के फ़ौजी इंजीनियर्स में से जो है 100 ख़वातीन भी शामिल हो गई हैं और वो अलग अलग शोबे में तहक़ीक़ का काम करेंगी। अरब न्यूज़ के एक इत्तला के मुताबिक ये EC के मेयारी कंट्रोल तरीक़ेकार के मुताबिक प्लांट के मुज़ाहरे और तखमीने का जायज़ा, टेक्निकी पेशकश की तरक्की को समझने के लिए मज़कूरा ख़वातीन को तरबियत दी गई है।
وہ لوگ مملکت کے اہم پروجیکٹوں پر یعنی منصوبوں پر اور جدید ٹیکنالوجیز کی تیاری کے لیے ذمہ دار ہیں۔ وہ لیزر آپٹکس، ایڈوانس اسکریننگ، آپٹیکل الیکٹرانک آلات پر وہ کام کر رہے ہیں، اور اس طرح ایک مینوفیکچرنگ انجینئر شازا خمیز نے کہا کہ میرے رول کے مطابق فیکٹری میں مینوفیکچرنگ سرگرمیوں میں حمایت کے لیے میں ذمہ دار ہوں۔ ویسے ناظرین گرامی، سعودی عرب میں جس طرح سے الگ الگ شعبہ جات میں بدلاؤ لایا جا رہا ہے، بعض بدلاؤ تنقید کی زد میں آ چکے ہیں، بعض بدلاؤ جو ہے واقعی میں وہ خواتین کو مختلف میدان میں آگے لے جانے والے بھی ہیں، اس بات سے بھی ہمیں انکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔